आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम ना होने देंगे। जब तक बचा है लहू का एक कतरा भी, अपनी भारत माँ की इज्जत को नीलाम ना होने देंगे। So with these great motivating lines, I welcome you and wish every one of you happy Independence Day. It's a really proud moment for us that we are celebrating the 74th anniversary of independence. But even then, a very important question ponder upon our mind when you will just look your inner conscience, that have we really understood the real essence of independence, for which the lot many peoples have sacrificed their lives. क्या हम लोग उस रियल एसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को आज तक समझ पाए हैं जिसके लिए लाखों हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपने लाइफ को कुर्बान किया था? So it's a very important question and needs to be addressed. So namaskar, johar, sat shri akal, adab and welcome to this session. So this session is not directed to any of the subjects for like physics, chemistry, mathematics or something else, but today we are going to discuss something beyond this which needs to be answered and which needs to be understood. So what are we facing even after 74 years of independence? Was our independence directed only for the change of governance from the British to the Indians, or it was directed to something more beyond that? Before independence, our country was actually a victim of lot many of the social inequalities and injustice which were prevailing. Lot of negative things which was going in the society that time. So our freedom fighters, each and everyone who have been listed and not listed, have fought their individual freedom struggle collectively, not to only gain independence from the British Empire, but also to gain independence from all such negative emotions, negative thoughts and negative things which were prevailing in the society. But alas, the situation has now today also becoming quite alarming. We are also on a verge of a greatest moral degradation. When you will just open any of the news or any of the newspaper, will find only one thing: injustice. Injustice with the girls, injustice with the old people, injustice with the poor. We'll find that red tapism all over, all around. So this is a new form of slavery which the entire country is facing. So as such, it becomes very, very important to address such a issue, because until and unless we are free from these all evils, we are not independent. Until and unless we are able to provide that security to our girls, to our each and every students, we are not free. Okay, so today's session is very, very important to build our future nation builders, that is our students. So students, today I will be talking to you directly that you have not to be so much afraid that you cannot do anything or you will be just a failure in your life. बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों, आपको पता नहीं है कि आप दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट हो। Beautiful gift means you have been endowed with the enormous potential from the mother nature. तो बच्चों, सबसे पहले आपको दिमाग में यही रखना है कि आप कमज़ोर हो ही नहीं सकते हो, बिकॉज आप सबसे पावरफुल नेचर, बहुत पावरफुल जो क्रिएटर है नेचर, उनके आप संतान हो, उस ऑलमाइटी के आप संतान हो। क्लियर? सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें सोचना, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, मैं आज उन सब चीज़ों को मैं आप डिस्कस करना चाहूँगा। और ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये इनफैक्ट आपकी इनर कॉन्साइंस की आवाज़ है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ये पहुँच पाए। ओके, बहुत बार होता है ना कि हम अपने आप को सुन नहीं पाते हैं। तो लेट्स हियर आवरसेल्फ फ्रॉम विद इन। तो लेट्स स्टार्ट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स which is lacking nowadays is that we are becoming irresponsible. We are becoming a slave of irresponsibility. So बच्चों, सबसे पहले जो हमें सीखना है वो सीखना है that is to respect others, to respect each and everyone irrespective of their social status, irrespective of their caste, creed, sex and religion, because we are such a country where unity prevails and where there is diversity and there is unity in diversity. क्लियर? सो बच्चों, सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट करना है उस ऑलमाइटी नेचर का जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, उस ऑलमाइटी गॉड का जिन्होंने हमें एक्चुअली इस दुनिया पे लाया है। और हमें रिस्पेक्ट करना है अपने पेरेंट्स का, who have been serving us since our birth and before our birth too.
and we have to respect our teachers who are the real nation builders, who really forms us. Okay, we have to respect all our friends, all everyone. तो बच्चों ये जो जब आपको ये इस टाइप का मॉरल वैल्यूज आप अंदर से आप फील करोगे, जब रिस्पेक्ट करोगे, आप खुद के खुद एनलाइटेंड हो जाओगे। आपको वो सारा पावर मिलेगा नेचर से, जिससे आपका इमोशंस, आपका जो स्ट्रेंथ है कभी भी वीक नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी ऑलरेडी ऑल द एल्डर्स हैव आल्सो फॉरगॉटन, दैट इज ऑनेस्टी। बच्चों हम लोग वो कैट रेस में जुट गए हैं जहाँ पे ग्रीड हमें ओवरकम कर गया है। ग्रीड हमें ऐसा ओवरकम कर गया है कि हम बस पैसा कमाने में ही, शॉर्टकट्स में ही लगे जाते हैं। वी हैव टोटली नेग्लेक्टेड दिस ऑनेस्टी। और ये ऐसे ही सिर्फ नहीं बोला गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज रियली अ बेस्ट पॉलिसी। सो मैं ये आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा कि बच्चों सबसे पहले आप अपने आप को पूरी तरह से ऑनेस्ट बनाइए। बच्चों ऑनेस्टी मतलब बस ये नहीं होता है कि चीटिंग नहीं करना। बच्चों ऑनेस्टी मतलब होता है कि ऑनेस्टी विथ योर टाइम, ऑनेस्टी विथ एवरीवन, अ टाइप ऑफ ट्रस्ट। मतलब जब आप खेलने जा रहे हो तो आप ऑनेस्टली आपको खेलना है, पूरे मन से आपको खेलना है। जब आप पढ़ने जा रहे हो तो पूरे मन से पढ़ना है। दैट सॉर्ट ऑफ ऑनेस्टी वी रिक्वायर। जब आप अपने पेरेंट्स को जब हेल्प कर रहे हो तो बच्चों पूरे मन से हेल्प करना है। तो दैट सॉर्ट ऑफ ऑनेस्टी वी रिक्वायर। जब आप जो भी चीज़ कर रहे हो तो पूरे मन से कर रहे हो, मतलब योर टोटल सोल एंड योर बॉडी आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। देन ओनली अ सही कैरेक्टर एंड अ सही पर्सनालिटी विल बी फॉर्म्ड। Then is the courage, and one thing is very very important. When you are honest from your within, your inner conscience will give you that courage which is required to overcome all the obstacles. बच्चों दिमाग में तो बिल्कुल रखिएगा, ये जो आपके किताब में जो इंफॉर्मेशन होता है, या ये जो इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर्स में होता है, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, ये बच्चों आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये ह्यूमन बींग्स द्वारा ही क्रिएटेड है, तो आप इसको बिल्कुल ही ओवरकम कर सकते हो। आप उस रेस से बिलोंग करते हो जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ चुका है, आप उस रेस से बिलोंग करते हो जो चंद्रमा में पहुंच चुका है। सो देयर स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन शुड बी अ वेरी वेरी सिंपल थिंग्स फॉर यू, बट ओनली द मेन थिंग रिक्वायर्ड इज ऑनेस्टी एंड करेज। ओके, तो बच्चों बिल्कुल डरना नहीं है, ब्रेवली एकदम लग जाना है। नो डाउट कभी फेलियर्स भी आएंगे, बट बोलते हैं ना कि फेलियर्स इज द पिलर्स ऑफ सक्सेस। सो आपको इस इंडिपेंडेंस डे में आपको अपने साथ ये वचन लेना है कि आपको फेलियर से कभी घबराना नहीं है। रादर आप जब भी गिरोगे तो दुगुना एफर्ट के साथ आपको उठना है। नेक्स्ट बच्चों हार्ड वर्क। करेज को हमेशा फैसिलिटेट करता है हार्ड वर्क। बच्चों ये हार्ड वर्क आपको सीखना है। आपको अपना आलस, आपको अपना लेजीनेस से आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। ये जो लेजीनेस होता है ना, कभी कभी लेजीनेस ऑफ इमोशंस कि नहीं अभी नहीं करेंगे, कभी बाद में करेंगे, हम चीज़ों को टालते हैं। तो बच्चों हमको इससे फ्री होना है, हमको ये ईगो से फ्री होना है कि हम बाद में कभी कर लेंगे। बच्चों हमारा टाइम बहुत प्रीसियस है और हमें अपना एफर्ट बिल्कुल बहुत सही तरह लगाना है ताकि एक सही पर्सनालिटी का फॉर्मेशन हो पाए। बिकॉज आप एक एक इंडिविजुअल इस नेशन के बिल्डर्स हो, इस सोसाइटी के बिल्डर्स हो, इस फैमिली के बिल्डर्स हो। क्लियर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ओवरऑल सबको समअप करता है, दैट इज द एथिक्स। बच्चों अगर हमारा एथिक्स बहुत स्ट्रांग रहे, हमारा मॉरल वैल्यूज सिर्फ किताबी भाषों तक नहीं रहे, उसको अगर हम अपने लाइफ में इंक्लूड करें, अपने लाइफ में उसको आजमाएं, सबको रिस्पेक्ट करें, सबके साथ प्रॉपर अच्छा बिहेव करें, बिल्कुल अपने सिस्टर्स के साथ भी अच्छे बिहेव करें, अपने ब्रदर्स के साथ भी अच्छे बिहेव करें, अपने बाकी कम्युनिटीज़ के फ्रेंड्स के साथ भी अच्छे बिहेव करें। हम लोग ये सब चीज़ नहीं सोचे कि कौन कौन सा रिलीजन का है, कौन कौन सा रिलीजन का नहीं है। हम बिल्कुल ये सब मैटर नहीं करें, कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड ऑल, बट रादर अगर हम ये सब चीज़ सोच के अगर हम आगे बढ़ने लगेंगे तो बच्चों हम लोग बिल्कुल एक नए समाज का निर्माण करेंगे और आपका एजुकेशन तो बेस्ट रहेगा ही रहेगा और आपको लाइफ में सारा पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगा यूनिवर्स का सक्सीड करने के लिए। सो आपको बिल्कुल आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करोगे। सो विद दीज all the values, I would like to sum up and say that these Independence Day is the sum of all the important things, all the necessary things that we have to accumulate to make up ourselves really free from our negative thoughts, destructive thoughts, negative emotions, negative actions, negative thoughts and everything. So with these great lines and entire great session, I would like to end. And I would like to conclude only a simple thing that is going to be a
torch bearer and it's going to be a मतलब guiding light for all of us. That is, जीतने वाला बच्चों कोई अलग काम नहीं करता, ना ही वो कोई अलग प्लैनेट से आता है, बस वो हर काम अलग ढंग से करता है, हर काम इथिकल करता है, विथ ऑनेस्टी करता है. आपको भी बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे में आपको यही करना है. So with these great lines, I'd like to say thank you and once again, Happy Independence Day.